सुनीता तू ओपन कर ले। चलो यार। Everybody there? Hello. Hi. Good evening, everybody. And this is Jay Kumar Basin. And I'm today doing one of the simple homemade recipes for the Amul. So from the Amul simple homemade recipes, we are going to try today one of the very most famous dish from Italy. So this dish is named as arancini siciliana. It comes from Sicily city, and basically when we make arancini siciliana, this is more on the non-vegetarian side. Today we are going to give it a twist. आज हम इसको एक ट्विस्ट देंगे और अपना हिंदुस्तानी टच देते हुए we are going to mix it with an Indian touch, and we are going to make a vegetarian homemade siciliana. And what are going to be the ingredients, I will let you know one by one. You can see over here, first of all, we have arborio rice. We have vegetable stock. You can see I have made a stock with all the vegetables, with the bay leaf, peppercorn, onion, some carrots, some daily vegetables. You can have cabbage, root vegetables, and then we have a white wine. What I have taken here is Chardonnay wine, some olive oil, some tomato, chunky tomato sauce. Now this is basically similar to provincial sauce, which you might have known. Onion, chop garlic. You blanch the tomatoes, de-skin the tomatoes and chop them and make them fresh sauce with the olive oil. And then over here we have, if you can see, red chili flakes, some oregano, some this is one I have taken is Amul cheese, some salt, and some Parmesan cheese. Okay, Parmesan cheese is right over here I have taken, and the Amul cheese over here. So this is what I am going to use, the Amul products. Although if you can see, Amul has a various variety of dairy products, and they have some heavy cream, some milk, some milkshake, some lassi, and they also have Amul butter, then Amul cheese, and Amul desi ghee. That's a pure ghee. Okay, this is very, very famous in India. Then we go on the other side. We are going to talk about now the stuffing. So the stuffing is going to be, we are going to make a pesto. So Italians, you know, this pesto is one of the most important thing for Italians and Italian cuisine. So we are going to make some basil and parsley pesto. So I have taken some fresh basil leaves. You can see we will make fresh pesto here. Some garlic, I have already chopped the garlic. Some pine nuts and walnuts mixed together, and some Parmesan cheese. Along with this is going to be the olive oil. You can see over here, which is already over here as well. So this is all going to be the ingredients. A part of, we also have some breadcrumbs to when we crumb the balls. We have the breadcrumbs. I made the breadcrumbs at home from the fresh bread, and some flour, egg, and milk mixture, which we use normally for crumbing. So this is going to be for the crumbing part. If you do not want to use egg, then you can use some flour, some corn flour, and some milk. You make a batter out of it. आप उसका एक घोल बनाइए and then cram कीजिए. अभी हम क्या करेंगे? Let's say we will start one by one. Okay. So let's start with the basic arborio rice. So for the arborio rice, arborio is the rice which the Italians love it. This is mostly used for risottos, and you can, if you do not have available, अगर आपके पास arborio rice नहीं है तो आप parboiled rice से भी बना सकते हैं. But मैंने यहाँ पर arborio rice लिया है, जो कि one of the finest brands are there, and this is what I use when I am in America or in the cruise ships also. The same brand we use. So luckily I was able to get it. The same olive oil also we use it
somewhere more in America and Italy. So ये तो हो गया आज का. And also I would like to know and thank Amul for taking this initiative. आज अमूल का ये जो शो हम कर रहे हैं, this is the 1000th show. So congratulations to Amul, congratulations to the whole Amul team working behind to make the Amul show a success. ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अमूल ने लिया है. ऐसे लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने एक शुरुआत की, एक मुहिम शुरुआत की कि जितने भी शेफ्स लोग और कुक्स लोग घर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये शो की शुरुआत की है. घर घर से वो शो कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट द लिबर्टी इज दे हैव गिवन. दिस इज माय थर्ड शो with Amul. I have done 2 before earlier. One I did also on the World Milk Day. So this is the third show. So thank you Amul very much for taking care of all the Indians. And I know this show is going and showed all over the world. ये show जो है पूरे संसार में इस टाइम दिखाया जा रहा है. So and the whole credit goes to the whole Amul team. And thank you Amul on behalf of all the Indians to also provide us such beautiful stuffs, the dairy products. ऐसे dairy products Amul ने दिए हैं जो कि लाजवाब हैं. हम तो बचपन से इनको खाते आ रहे हैं. So let's say now we'll start with the risotto rice, the basic risotto rice. So what we'll do, we'll take some, here we have a pan already. We'll heat up the pan. And then we put some olive oil here. So whenever you go in an Italian restaurant, there are two things very famous among the Italians. One, in the starter is minestrone soup. Second, in the starter you also get crostini. And the third one in the main course for the vegetarians or the non-vegetarians is risotto. So risotto again is one of the easiest thing to make, and also I will say one of the most difficult things to make. So ये हमने पारबॉयल राइस लिया हुआ है, पारबॉयल नहीं, अर्बोरियो राइस लिया हुआ है. इसको हमें वॉश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ये हमने थोड़ा अनियन इसको लिए एक चॉप कर लेंगे. अनियन तो बहुत आता है. पैन हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है. देखिए अनियन ने सिजलिंग शुरू कर दिया है. एक डब्बी में डाल के डालना. We'll put some more oil. I think so they need more. Now we'll add some rice. क्लासिक जो रिजोटो होता है उसमें बेसिकली सेफ्रन भी जाता है. सो मैं सेफ्रन भी डालूँगा. ये हमारा सेफ्रन है, आप देख सकते हैं. दिस आवर सेफ्रन.
I will add a punch of salt here. So मैं salt शुरू में ही डाल दूँगा. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वाइन डालेंगे इसमें. Wow, I can see the flavor. I can feel it. पानी stock. We are going to put some stock in it. ये वेजिटेबल स्टॉक बनाया है. And I made this vegetable stock to add that extra flavor in the risotto. I have already added the bay leaf in this. हमने सॉल्ट पहले ही डाल दिया है, तो यू कैन नो, ये थोड़ा सेफ्रन डालेंगे हम, क्योंकि हम क्लासिक रिजोटो बना रहे हैं. सो यू कैन सी द सेफ्रन नाउ गिविंग द कलर ऑलरेडी. ये रिजोटो राइस बनने में तकरीबन 22 से 25 मिनट लगते हैं. इसको अभी हम सिम पे कर देंगे. वी नीड टू स्लो डाउन द फायर आफ्टर द वंस द फर्स्ट बबल कम्स. ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्नैक्स है इटली में. यू कैन कॉल द रोड साइड स्नैक्स, सिमिलर टू, आई विल से, इफ यू वांट टू कंपेयर, सिमिलर टू इंडियन समोसा और बटाटा वड़ा और वड़ा पाव इन बॉम्बे. द सेम वे is enjoyed all over the Italy. Arancini Siciliani. So arancini can be in very, very different forms. You go from place to place in Italy, they have different way of making the arancinis. So now let it cook. I will say we'll add some more stock. इसमें एक लिबर्टी मिलती है हमको कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम पुलाव में घबराते हैं राइस बनाते हुए, आप बीच बीच में भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं. अगर आपको लगे अभी थोड़ा बाकी है पकने में, तो आप थोड़ा आराम से धीरे धीरे इसको पकने दीजिए. अब ये पक रहा है, सो इन द मीन टाइम हम इसको थोड़ा सिम पे कर देंगे. बॉयल आ चुका है, अब ये सिम पर है और लेट इट कुक. ओके, नाउ व्हाट विल डू, अब हम आपको दिखाते हैं. जनरली क्या देखा गया है, सिंस वी आर इन इंडिया और अभी अभी काफ़ी शौक शुरू हुआ है इटालियन फूड का. देयर इज़ अ बिग मार्केट इन इंडिया फॉर इटालियन फूड. सो लोग जो है ना मार्केट जाकर पेस्टो रेडीमेड लेके, मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है एंड मेरे सन इन लॉ को भी. सो दे आल्सो गो इन द मार्केट बाय द रेडीमेड वन. वंस आई हैव शोड देम हाउ टू मेक द पेस्टो, दे आल्सो नाउ लव टू मेक इट एट होम. बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको. देखिएगा, ये आपका बेसिल लीफ है. बेसिल लीफ अगर आप इसको स्मेल करें तो बिल्कुल जैसे आपके तुलसी लीव्स है वैसे होती हैं. मैंने बेसिल लीफ धो ली है, ये देखिए पानी है इसमें, धो ली है. और मैंने पार्सले भी धो लिया है. आप बेसिल एंड पार्सले बना सकते हैं, खाली बेसिल का बना सकते हैं, एंड बेसिल एंड सिलांट्रो भी बना सकते हैं. तो ये आपके ऊपर है, आपने कैसा बनाना है इसको. अब अभी हमने इसमें क्या डाला है, बेसिल लीव्स. अब हम डाल देंगे इसमें पाइन नट्स एंड वॉलनट्स, ये सारा डाल दिया हमने. अभी हम इसमें डाल देंगे आपके गार्लिक, ये गार्लिक डाल दिया है. अब हम डालेंगे ये चीज़, ये पार्मेज़न चीज़, सारा चीज़. कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. अब इसमें आपने
ये जो तेल है, ये सारा ऑलिव ऑयल इसमें डाल दीजिए आप, जितना भी है। सो जैसे मैंने अभी as I have taken like 200 grams of basil and 100 grams of parsley, so I have used like 20 gram of garlic, 35 to 40 gram of parmesan cheese. parmesan cheese ये है सामने, आप रेजिन टू चीज़ भी ले सकते हैं और parmesan भी ले सकते हैं, एक ही चीज़ है, हार्ड चीज़ के अंदर आता है ये। एंड देन ऑयल आप 100 ml ले लीजिए, ठीक है जी। अभी आपने करना क्या है, खाली इसको एक ब्लेंड करना है। हमारा रिजोटो बन रहा है, सो इन द मीन टाइम हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मे बी ऑयल नीचे नहीं गिरा शायद। कभी भी आप हमेशा कभी भी यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक स्पैटुला यूज़ करिएगा, दूसरा नहीं, ऐसे बीच में। We'll use a little bit of more olive oil here. So 100 to 120 ml ले लीजिए आप, बस काफ़ी है। कैमरा थोड़ा नीचे कर, चावल इसको दोबारा मिक्स कर लीजिए ताकि ऊपर नीचे हो जाए। ये आपका पेस्टो रेडी हो गया है। अब देखिएगा ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इसकी, एंड सी द कलर हाउ ग्रीन इट इज, एंड वट एवर यू गेट इन द मार्केट इन द बॉटल्स इज एक्चुअली आई डोंट लाइक इट, इज टू लॉन्ग प्रिजर्व केप्ट। सो ये आपका पेस्टो हो गया इससे। तो ये तो आपका पेस्टो बन गया, इसको हम स्टफ़ करेंगे। थोड़ा सा हम पामेज़न चीज़ लेंगे और हम पामेज़न चीज़ स्टफ़ करेंगे। सो अभी ये राइस अभी बना नहीं है, सो मैंने क्या किया है, सिंस द राइस टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम, सो मैंने थोड़ा सा राइस पहले ही अर्बोरियो बना लिया है आपके लिए। ये देखिएगा मैंने ठंडा भी इसको कर लिया है, बिकॉज अगर हमने इसको बॉल की शेप देनी है सो इसको ठंडा करना ज़रूरी है। सो since we are in the show and which is live show, so I really don't want to have that much time waiting for you, so let this be cooked inside and we can go ahead with our next step. So ये हमारा है, इसको हम अभी यहाँ से हटा देते हैं एंड ये अंदर पकता रहेगा।
अभी मैंने क्या किया है, ये ब्रेड क्रम्ब ले लिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। थोड़ा मैंने बैटर बना लिया है, ये आपको बताया अभी मैंने बैटर कैसे बनाया है। एग, फ्लावर एंड मिल्क तीनों को मिला के, जैसे आप इंडिया में पकोड़े का बैटर बनाते हैं। इसका एक ऑप्शन और है, अगर आपने वेगन बनाना है, लॉट ऑफ पीपल आर दीज डेज वेगन, ओके। वेगन मीन्स जो आदमी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा सकता, तो उसके लिए आप इसमें बेसन यूज कर सकते हैं, ग्राम फ्लावर। यू कैन यूज ग्राम फ्लावर इंस्टेड ऑफ रेगुलर फ्लावर, ओके। आप ग्राम फ्लावर लीजिए, जैसा पकोड़े का आप घोल बनाते हैं घर में इंडिया में, ऐसे ग्राम फ्लावर का घोल बनाइए, और आपको तभी अंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्लावर की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ब्रेड क्रम्ब कीजिए, बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये आपकी राइस है, इसको हम इधर रख देते हैं। एंड राइस के भाई हम बॉल्स बनाएंगे। तो क्या करने का है, पहले आप बॉल्स सारे आपके इक्वल शेप के होने चाहिए। तो आप अंदाज़ा लीजिए, एक 1.5 ऑन्स, ओके, और 1 ऑन्स भी लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। 1 ऑन्स इज़ ऑलमोस्ट 28.3 ग्राम्स होता है। आप राउंड फिगर ले लीजिए 30 ग्राम्स। आप ऐसे एक बॉल बनाइए, ये यहाँ पे रख दीजिए, एक बनाइए, यहाँ रख दीजिए, ये एक है आपका। सो वी गो 1 बाय 1, और कोशिश करिएगा कि एक साइज का बने। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एट होम पीपल हु हैव लिटिल बिट ऑफ डाउट ऑफ कंसिस्टेंसी कि सारे मेरे जो ऑरेंज चीनी के बॉल्स हैं एक जैसे एक शेप के होने चाहिए, आप आइसक्रीम स्कूप ले सकते हैं। जो आइसक्रीम स्कूप होता है, तो हर आइसक्रीम स्कूप को पूरा भर लीजिए, तो आपका इक्वल क्वांटिटी आएगा, जैसा भी आप चाहेंगे। सो हम 6 ये बना लेते हैं, 6 बॉल्स। ओके, आप ये 6 बॉल बना लेते हैं। अभी क्या करेंगे, बॉल्स के अंदर पहले हमने स्टफ करना है, ठीक है ना। ग्रेटर थोड़ा सा हमें चीज़ स्टफ करना पड़ेगा, चीज़ ग्रेट करके। ये पामेसा चीज़ है, एज आई टोल्ड यू। आप रेजिएंटो चीज़ भी ले सकते हैं, सेम है। आप पामेसा लीजिए, रेजिएंटो लीजिए। ये हम पेस्टो के साथ अंदर स्टफ करेंगे, तो ये थोड़ा इंडियनाइज टच करने के लिए मैं इसमें कुछ डिफरेंट भी करूँगा आज, क्योंकि इंडियन लोगों को थोड़ा क्या होता है, तीखा चाहिए होता है हर एक चीज़ में। अगर तीखा ना हो तो टेस्ट तो सब चाहिए, लेकिन थोड़ा तीखा चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे तीखे के लिए, मैंने यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स रखी हुई है, ये अमूल का चीज़ भी रखा हुआ है। मैं दोनों चीज़ इसमें स्टफ़ करूँगा, तो आप देखिएगा। जैसे आलू की टिक्की होती है, आप घर में आलू की टिक्की कभी बनाई होगी या मार्केट में देखी होगी। आप एक हॉलो करिए, आप ऐसे पेस्टो लीजिए। कैन यू सी दिस कलर ऑफ पेस्टो? आई थिंक सो यू शुड गो विद दिस कलर, ओके। एंड
फ्रेश बेसिल यस, दिल्ली में मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट मिल जाता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ जस्ट टू गेट लिटिल बिट ऑफ इंडियन टच। और ये मैं थोड़ा अमूल चीज़ डालूँगा इसमें, थोड़ा पामेज़ान चीज़ डालूँगा, क्योंकि आई स्टिल डोंट वांट टू लूज द इटालियन टच। ओके, अब ये हो गई आपकी बॉल्स। क्या करेंगे हम, बॉल्स को एक एक करके यहाँ रखते हैं। बहुत सिंपल है, आप टिक्की की तरह इसको करिएगा। पहले आप पेस्तो डालिएगा, तो जब आप अनचिनी बॉल को काटेंगे तो आपको एक बहुत प्यारी महक आएगी अंदर। और ये आपने अमूल चीज़ डाला, ये थोड़ा सा पामेज़ान चीज़ डाला, एंड देन यू क्लोज दिस। I hope a lot of you might have been watching the Amul shows. I have been constantly watching, and believe me, there are so much talent hidden and so much youth which are really showing their cooking skills, and so much people sitting at home who have left this job and still they want to show their skills. My goodness. So I am very grateful to Amul, and we all in the cooking fraternity are grateful कि वो एक मुहिम लेकर आए, एक they have did something very good for the cooks who are at home. Oil और चाहिए। Okay, this is the oil. What they have done, they have tried, my wife has tried to help me out today, so she has heated the oil already. So thank you very much. And also let you know, I am so fortunate that my son is on vacation these days, and he is helping me out to shoot this video. Olive oil. So what we do here, well, I like this pesto, you know. You need to try at home, believe me. If you can't get basil leaves, try with the parsley, fresh parsley leaves. Okay. I have also made the tomato sauce, as I told you, the provincial tomato sauce. I have made it, the chunky one. So to try it out with the कैमरा थोड़ा नीचे नीचे ना So you can see these balls are here already. So we have done this part. So pesto can go in the side, chili flakes can go back to their place, Amul cheese goes back to its place, and Parmesan cheese. Now what we will do, now comes the tricky part. We have to cram these, okay? So we will cram it up. We take this a la Anglaise batter and we put it in the breadcrumb. Coat it nicely with this batter. People who are in a lot of states in India which are purely vegetarian, like Gujarat and Bombay and more other parts, let's say in Delhi also,
no need to worry. Use gram flour, and I'm sure you will like it. What I need to do, I need to change my gloves now here. So I will take a napkin and wash my hands. This napkin is already sanitized, so I'll take a fresh pair of gloves. ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और ये बेसिक हाइजीन में आता है। एक ग्लव्स अगर ये आपके पास घर में 2 जने हों तो ज़्यादा अच्छा है। एक जना बैटर में डिप करके डालेगा, दूसरा निकालेगा। मेरा ये थोड़ा ग्लव्स डैमेज हो गया है, तो मैं आई विल टेक अनदर वन, आई विल नॉट टेक इट आउट। तो yeah, we are there. So you see, very important. Now what we do, we have to just cram the balls. आप रोल करिए क्राम के अंदर। और क्राम में एक टेंडेंसी होती है, जैसे आप कोई भी बैटर क्राम के साथ डालते हैं किसी स्टफिंग के लिए, तो क्राम में एक टेंडेंसी क्या है कि वो लम्प्स आ जाते हैं बहुत जल्दी। सो आप उसको लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ क्या करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो क्राम्स के अंदर थोड़ा सा फ्लावर मिला लीजिए, तो क्राम्स जो है जितना भी फ्लावर होगा, क्राम्स के अंदर जो भी सौगीपन होगा उसको सोक कर लेगा। और तीसरी रेमेडी क्या है, अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप क्राम्स को बीच बीच में स्ट्रेन कर लीजिए। एक स्ट्रेनर लीजिएगा जो थोड़ा मोटे छेद का हो, एंड आप स्ट्रेन कर लीजिए। ये आपके बॉल्स रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। बहुत सिंपल रेसिपी है। सिंस अमूल का तो शुरू से ध्येय ही यही रहा है कि बेसिक सिंपल होम मेड रेसिपीज। सो हमने क्या किया है, थोड़ी सी इटालियन डिश को हमने इंडियनाइज टच ज़रूर दिया है। ये आपकी बॉल्स बन गई हैं, ठीक है जी। ये आपका क्राम है। अब मैं क्या करूँगा, इसको टू बी सेफ साइड आई विल गिव इट अ रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, और इसको हम डबल क्राम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रख देते हैं, और ये मैंने पहले ही डबल क्राम करके रख दिया है, सो वी डोंट वेस्ट द टाइम। आप देख सकते हैं ये डबल क्राम हो चुका है। सो आप डबल क्राम करेंगे कभी भी तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बॉल्स है एकदम नाइस गोल्डन ब्राउन क्रिस्प है। अगर आपको मार्केट में पांको ब्रेड क्रम मिलता है, जापानीज ब्रेड क्रम होता है, थोड़ा मोटा होता है, अगर आप वो लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मैं तो घर में ब्रेड क्रम बनाने में बिलीव करता हूँ। आप फ्रेश ब्रेड लीजिए और उसका ब्रेड क्रम बनाइए। आपके पास फ्रेश ब्रेड क्रम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास हैमबर्गर ब्रेड होगा, पाव भाजी का ब्रेड होगा, उसका अपर क्रस्ट निकाल लीजिए, उसको खाली हाथ से ऐसे कीजिए, आपका ब्रेड क्रम रेडी, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं। लेट द ऑयल बी हॉट। लेट द ऑयल बिकम हॉट, एंड ये मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, वैसे ही डेकोरेशन के लिए कुछ बेसिल लीव्स और वो बनाए थे। वंस द ऑयल इज हॉट, आपने खाली इनको फ्राई करना है।
ऑयल को मैं पंखे को थोड़ा स्लो कर देता हूँ। आप ऑयल को मैक्सिमम हीट पे कर लीजिएगा। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, बट लेट इट बी हॉट। वंस द ऑयल इज हॉट, remember only then you need to put this inside। ये हमारा प्लेटिंग के काम आ जाएगा। ठीक है, फेस ले लेंगे। So I think so by now you might be able to make the arancini balls। हमने क्या किया है, अगेन इफ आई रिपीट टिल द ऑयल बिकम्स हॉट, हमने अर्बोरियो राइस लिया है, उसको बनाया है वेजिटेबल स्टॉक के साथ। अगर किसी को नॉन वेज बनाना है तो वो इसमें और बहुत कुछ डाल सकते हैं, मीट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम तो प्लेन। हमने क्या किया, इसमें ऐड करने के लिए सेफ्रन डाला है, थोड़ा चिली फ्लेक्स, इंडियन टच देने के लिए चिली फ्लेक्स डाला है। थोड़ा ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए, आप देख लीजिए, तभी हम चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर। ओके, लेट्स ट्राई वन। बाद में इज नॉट हॉट येट दो। थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे इसमें, तो बॉल विल डू। जब भी आप इसको रेस्ट देते हैं अरांचीनी बॉल्स को, तो आई विल प्रेफर आप इसको फ्रिज में ना रखिए प्लीज़। फ्रिज में रखेंगे तो राइस बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आपको क्या होगा कि ब्रेड क्रम्ब के ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन राइस अंदर से गर्म नहीं होगा। तो मैंने जब इसको डबल क्रम्ब के लिए किया, मैंने आधा घंटा बाहर ही रख दिया और उसके बाद राइस नॉर्मल टेम्परेचर पे था और अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। सो राइस वॉज नेवर केप्ट इन द फ्रिज। सो आई विल नॉट प्रेफर यू टू पुट द राइस इन द फ्रिज वंस द राइस इज कुक्ड। इफ़ यू कीप द राइस इन द फ्रिज, उसका राइस का टेक्सचर और टेस्ट और फ्लेवर तीनों निकल जाते हैं। Now the oil is becoming hot. डबल कोटिंग जब आप करते हैं ब्रेड क्रम्ब की, तो उससे एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि आपका जो है कोई भी चीज़ आप डबल कोटिंग करिए वो कभी भी फटेगी नहीं, ये श्योर है। और जब भी आप कर लेते हैं क्रमिंग, उसके बाद उस प्रोडक्ट को रेस्ट ज़रूर दीजिए। इज़ जस्ट लाइक केक्स, आप केक्स बनाते हैं तो उसके बाद रेस्ट देते हैं। अभी तेल गरम हो गया है, तो व्हाट विल डू, वी कैन ऐड अवर बॉल्स। यू सी, वाओ,
ये हमारा एक रेडी हो गया है। ऊपर से you can see it, the color coming slowly. It's basic frying, nothing difficult. As I said, आप घर में या मार्केट में आलू की टिक्की तो खाते ही हैं, घर में भी बनाते होंगे, तो वैसे ही बनाना है आपको। आप पार बॉयल राइस ले सकते हैं। अर्बोरियो हर जगह अवेलेबल नहीं मिलता, दिल्ली में भी मेरे को थोड़ी मुश्किल आई इसको लेने में। तो पार बॉयल राइस से तो बहुत अच्छा बनेगा, बट टेस्ट आपको अर्बोरियो से ही आएगा। मैं अगर कोई इटालियन पसंद करता है तो आई विल लव हिम टू गो विथ अर्बोरियो राइस। नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आने दीजिए, क्योंकि बॉल्स हैं तो हीट भी अंदर तक जानी चाहिए। ये आपके रेडी हो गए हैं, यू कैन सी दिस। या वेरी नाइस। एंड एज आई टोल्ड यू, this snack is one of the most famous snack in Italy. इसको अभी हम बंद कर देंगे। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लेटर लिया है। अभी ये टोमेटो सॉस मैंने फ्रेश बना दी है। आपको मैंने अभी रेसिपी बता दी थी, क्योंकि यहाँ अभी बनाने जाते तो थोड़ा सा झोल हो जाता टाइम का। एवरीबॉडी इज वेरी मच ऑक्युपाइड दीज डेज। चार बॉल रख लेंगे। अभी हमने ये थोड़ी सी टोमेटो सॉस ली, यहाँ डाली फ्रेश। फ्रेश प्रोवेंशियल सॉस है ये। अभी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पेस्तो लेंगे, हिला लीजिए। ये देखो ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये बेसिल की वो है कि डार्क तो होगा, बट इसमें इनफ ऑलिव ऑयल है। इसको आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक घर में रख सकते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या किया है, थोड़ा हमने रेड पेपर और ग्रीन पेपर को काट लिया है, और काट के हमने थोड़े से पानी में आइस वाटर में रख दिया था। ये आप यहाँ पर एज अ गार्निश के लिए रख सकते हैं। ये कर्ल हो गया है, देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, खाली आइस वाटर में रखना है आपको। अब आप ये लीजिए, आपका जो बेसिल लीफ है, जो इसकी जान है वो लीजिए, और जो सबसे छोटा वाला लीफ है वो यहाँ पर लगाइए। ट्राई टू टेक द स्मॉलेस्ट वन। ये रेड पेपर के बिल्कुल सेंटर में रख दीजिएगा।
सो ये आपका अरंचीनी रेडी हो गया है. And see, if you serve it like this, I'm telling you, you don't need to go to a 5-star hotel. Your 5-star hotel is right in your home, right at your doorsteps. How simple was the recipe? I am sure each one can now make this arancinis. Stuffing के लिए again मैं repeat कर दूंगा. हमने पेस्टो डाला है, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा पामेज़न चीज़ डाला है, थोड़ा अमूल चीज़ डाला है. आप स्टफिंग में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से इफ वी आर इन बॉम्बे साइड और गुजरात, you can use even imli, the tamarind pulp, okay, to make it more tangy. I would not love to put turmeric inside because then arborio का फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा. वाइन मैंने डाली है. जो भी आदमी वाइन नहीं पीता है, दिस इज़ एन ऑप्शनल. सो आप वाइन की जगह पर आप स्टॉक अच्छा बनाइए, वेजिटेबल स्टॉक लीजिए, उससे बनाइएगा. सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट and thank you very much one more time. On behalf of Amul, I would like to thank everybody, right from you audience to the Amul team, for giving us a chance to show a little bit of our skills. So thanks a lot and have a great ahead. Thank you very much.